Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is colorful birds. And what all we'll be studying is types of feathers, flight patterns, types of beak, nest, food for birds, sounds made by birds, caring for the birds, and migration. We'll be covering all these topics in the unit. Before starting the chapter, let's do a very small. कैन यू नेम दी फॉलोइंग बर्ड्स? हमें ये बर्ड्स अपने आसपास दिखती हैं बेटा, तो वी जस्ट हैव टू राइट देयर नेम. दिस इज अ पीकॉक विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ द या ये क्या है? इट्स अ स्पैरो. द पिजन. We see so many birds around us, different birds. They have different colors, they have different shapes. So, what all types of bird do we see in our surrounding? We'll be studying that in the chapter. So, let's start. We see different kinds of birds around us and they are the only featured animals can fly. हमें अपने आसपास बहुत सारे तरीके की birds दिखती हैं and they are the only featured animals जो आसमान में fly कर सकते हैं. And they have wings. Fly किसकी मदद से करते हैं? Wings की मदद से. They have strong muscles attached to their wings, hollow bones to keep their body light, and a streamlined body to cut through the air, which enable them to fly. उनके पास कैसी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है बर्ड्स का कि जिससे वो फ्लाई कर पाते हैं? दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स जो उनके विंग से अटैच हो रखे हैं. उनकी बॉडी एकदम हॉलो होती है, बोन्स एकदम हॉलो. हॉलो मीन्स खाली, खोखली, अंदर से खाली होती है. सो दैट देयर बॉडी वेट इज लाइट, ताकि उनकी बॉडी में वेट ना हो, बॉडी एकदम लाइट रहे. और एक स्ट्रीमलाइन सीधी सीधी बॉडी होती है उनकी, ताकि वो क्या कर सके? स्ट्रीमलाइन मतलब हवा को काट सके. अगर वो हवा इस डायरेक्शन में होती है तो अपने विंग से हवा को काट के आगे बढ़ लेती हैं. कट थ्रू द एयर विच एनेबल देम टू फ्लाई. एयर को कट करते हुए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने आसमान में फ्लाई करते चले. The wings of the bird are covered with feathers that help them in keeping their body warm. और जो उनके wings होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं? feathers होते हैं, so that their body is a little bit warm. Now see, this is a bird. This is the beak. Parts of हम body parts पढ़ रहे हैं birds के बारे में. Birds के जो body parts होते हैं वो कौन कौन से? This is a beak. Beak क्या होती है? चोंच. ये क्या है जो व्हाइट कलर के हैं, ऑरेंज कलर के हैं? ये क्या है? फेदर्स हैं. फेदर्स किस पे होते हैं? बर्ड के विंग्स पे होते हैं, सो दैट वी कैन कीप देम वार्म. देन दीज आर दी क्लॉज. क्लॉज मीन्स जो बर्ड के पंजे होते हैं. दिस इज दी विंग. ये जो ऊपर है हमारे, ये क्या है? विंग है. और ये जो नीचे है ये क्या है? टेल. So these are the body parts of a bird. We have a beak, feathers, claws, wing and tail. A point to remember. Molting is the process of shedding of the old feathers and replacing the new ones. Molting क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें हम पुराने feathers को shed गिरा देते हैं और नए feathers को उससे replace कर देते हैं. The process of replacing the old feathers with the new ones. old feathers को नए feathers से replace करने के process को हम बोलते हैं molting. Next is types of feathers. Different birds have different colored feathers. अलग अलग कलर की birds होती हैं and they have different colors of feathers. The colorful feathers make them look attractive and also help the bird to camouflage. जो अलग अलग कलरफुल फेदर्स हैं उनके, वो क्या करती हैं? उन्हें सुंदर बनाती हैं. पीछे कितनी सुंदर बर्ड है, इसके फेदर्स कितने सुंदर कलर के हैं, कितने ब्राइट ब्लू कलर के फेदर्स हैं इसके, कितने ब्राइट ग्रीन कलर के फेदर्स हैं. सो व्हाट वी आर सेइंग बाय दिस, हम उनको सुंदर कह रहे हैं. सो दैट मीन्स देयर कलरफुल फेदर्स आर मेकिंग देम लुक मोर अट्रैक्टिव एंड मोर ब्यूटीफुल एंड इट हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज क्या होता है? अभी हम आगे पढ़ें. A bird has three types of feathers. First is down feathers. They are soft and fluffy. तीन तरीके के feathers हो सकते हैं बेटा birds के पास. First होते हैं down feathers. Down feathers कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा soft होते हैं, बहुत ज़्यादा fluffy होते हैं. They are found close to the bird's body. Bird की जो एकदम body होती है उसके एकदम पास होते हैं. And they keep their body, bird's body warm. और ये bird की जो body होती है उसे कैसा रखते हैं? एकदम warm, गर्म रखते हैं. अगले हैं body feathers. Second is body feathers. They give shape to the bird's body and cover the entire body. जो body feathers होते हैं वो body को क्या देते हैं? bird की body को shape देते हैं और उनकी पूरी body को cover कर लेते हैं.
द आउटर कवरिंग ऑफ द बर्ड फेदर इज कॉल्ड प्लूमेज। जो जो हमारी सबसे आउटर कवरिंग होती है फेदर की, बर्ड के फेदर की, वो क्या कहलाई जाती है? प्लूमेज कहलाई जाती है। और नंबर थर्ड है flight feathers. They are long and stiff and they are on the wings and tail of the bird. तो थर्ड तरीके के फाइबर्स बर्ड के पास होते हैं, वो होते हैं फ्लाइट फेदर्स। वो क्या होते हैं? एकदम लॉन्ग होते हैं, बड़े बड़े जो पर होते हैं सबसे ऊपर वाले, स्टिफ यानी कि एकदम कड़क होते हैं। एंड दे आर ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ द बर्ड। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बर्ड के विंग्स के ऊपर और उसकी टेल के ऊपर। तो कितने तरीके के फेदर्स हैं? तीन तरीके के। डाउन फेदर्स मतलब जो सबसे अंदर है, जो बर्ड की एकदम बॉडी के ऊपर होते हैं। वो कैसे होते हैं? बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लफी, और ये बर्ड की बॉडी पे एकदम क्लोज होते हैं और ये बॉडी को वार्म रखते हैं। अगले हैं बॉडी फेदर्स, जो इनके ऊपर होते हैं। वो बर्ड की बॉडी को शेप देते हैं और उनकी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। और जो आउटर कवरिंग होती है बर्ड की बॉडी की, उसे हम प्लूमेज बोलते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ फेदर्स दैट द बर्ड हैव इज द फ्लाइट फेदर्स, जो बहुत लंबे होते हैं और बहुत स्टिफ होते हैं। एंड दे आर ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ द बर्ड। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? विंग्स के ऊपर होते हैं और बर्ड की टेल पे होते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फेदर। नाउ इन द पिक्चर वी कैन सी, ये है डाउन फेदर। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हमें दिख रहा है ये, और बहुत ज्यादा कैसे है? फ्लफी। फ्लफी मतलब एकदम, हम जिसे टॉयज को बोलते हैं ना, दे आर वेरी फ्लफी, तो उस तरीके से ये बहुत ज्यादा फ्लफी होते हैं। वेट, सॉफ्ट एंड फ्लफी। ये क्या है? बॉडी फेदर होते हैं। ये बर्ड की बॉडी को शेप देते हैं। व्हाट डू दे डू? दे गिव द शेप टू द बर्ड्स बॉडी। और हम ये देख सकते हैं, अगर हमने कभी देखा भी हो, तो बर्ड के हम कहते हैं ना पंख टूट के नीचे गिरा है, तो कौन सा पंख होता है? हम जनरली ऐसा पंख देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं। तो दीज आर दी फ्लाइट फेदर्स, जो क्या करते हैं? बर्ड के विंग्स के ऊपर और टेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हम देख सकते हैं कि कितने लॉन्ग होते हैं। और हमने इन्हें, वी हैव ऑल वी हैव मेनी टाइम्स टच दीज फेदर्स ऑल्सो, ये भी नीचे गिर जाते हैं। तो बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं। स्टिफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा कड़क होते हैं। नाउ अ पॉइंट टू रिमेंबर, प्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द फेदर्स बाय द बर्ड्स विद देयर बीक्स। बर्ड्स का अपने फेदर्स को क्लीन करना अपनी चोंच से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रीनिंग। क्या है? प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द फेदर्स बाय द बर्ड्स विद देयर बीक्स। जब बर्ड्स अपने फेदर्स को क्लीन करती है अपने बीक्स, चोंच की मदद से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रीनिंग। फ्लाइट पैटर्न्स, सम बर्ड्स लाइक आर्कटिक टर्न, geese and swallow fly long distance। कुछ बर्ड्स को क्या, अब अलग अलग बर्ड का अलग अलग तरीका होता है बेटा उड़ने का। दे हैव अ डिफरेंट वे टू फ्लाई इन द स्काई। सम बर्ड्स लाइक आर्कटिक टर्न, geese and swallows the fly long distance। बर्ड्स लाइक hens and peacock fly short distance। शॉर्ट डिस्टेंसेस कौन ट्रेवल करता है? बर्ड्स लाइक hens and peacock। eagles and vultures fly high in the sky, whereas sparrows and bulbuls fly at a low height। ईगल और वल्चर जो होते हैं वो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ते हैं, whereas जो आपकी स्पैरो और बुलबुल होती है वो बहुत ज्यादा लो हाइट पे होती है। आर्कटिक टर्न जो होता है, इट्स अ नेम ऑफ अ बर्ड। आर्कटिक टर्न और गीज जो होते हैं वो एक टाइप की बर्ड होती हैं। एंड swallows जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। दीज थ्री आर द नेम्स ऑफ द बर्ड्स। दिस इज आर्कटिक टर्न, गीज एंड swallow। ये क्या करती हैं? लंबे डिस्टेंस में चलती हैं। आपकी जो हेन्स और पीकॉक होती हैं शॉर्ट डिस्टेंस। देन ईगल और वल्चर टाइम में बहुत ऊंचा उड़ती हैं। और स्पैरोज और बुलबुल्स जो होते हैं, दे फ्लाई एट अ वेरी लो हाइट। नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, हर बर्ड फ्लाई नहीं कर सकता। Some birds like kiwi, emu, ostrich are flightless birds। कुछ बर्ड जैसे कि कीवी, एम्यू, ऑस्ट्रिच, ये क्या है? फ्लाइटलेस हैं, यानी कि ये उड़ नहीं सकते। अब अगर हम पिक्चर में देखें, इट्स एन आर्कटिक टर्न, एज आई मेंशन, इट्स टाइप ऑफ अ बर्ड। पीकॉक, वल्चर एंड ऑस्ट्रिच, ये क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड है, क्योंकि इसके पास जो है विंग्स नहीं होते हैं बेटा फ्लाई करने। नाउ टाइप्स ऑफ बीक। बर्ड्स ईट विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स एज दे हैव नो टीथ। याद रखेंगे हम, बर्ड्स बीक की मदद से, अपना चोंच से खाना खाती हैं, बिकॉज दे हैव नो टीथ। एंड डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक डिपेंडिंग अपॉन देयर फीडिंग हैबिट्स। अलग तरीके की जो बर्ड्स होती हैं, हर बर्ड के पास अलग तरीके की बीक होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर फीडिंग हैबिट्स। क्या वो खाती हैं, किस तरीके की चोंच उन्हें चाहिए होती है, वो उनके बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी फीडिंग हैबिट्स कि वो कैसा खाना खाती है। Now first, flesh-eating birds like eagle, kites, hawks have sharp hooked and strong beaks to tear the flesh। अब जो birds flesh खाती हैं यानी कि मांस खाती हैं,
वो कौन सी है? ईगल है, काइट है, हॉक्स है, उनके पास एकदम शार्प नुकीली होती है, हुक्ड मतलब एकदम पॉइंटेड होती है और स्ट्रॉन्ग बीक होती है। वाई? सो दैट दे कैन टीयर द फ्लैश विद देयर बीक ओनली, वो अपनी चोंच से मांस को काट पाते। Second is grain eating birds like sparrows, pigeons, hens have short and pointed beak to crush the seeds and grains. अब जो birds आपकी क्या खाती हैं? ग्रेन, दाने खाती हैं, उनके जैसे कि स्पैरो या पिजन या hen हो गए, they have a very short and a pointed beak so that कि वो अपने चोंच से उस दाने को तोड़ सकें. They can crush the seeds and the grains. Now next is water birds like ducks and spoonbills have broad flat beaks with tiny holes at the side to filter out the water that they take with the insects and worms. अब जो आपकी बर्ड्स जो पानी में रहती है, जैसे कि डक है, स्पूनबिल्स है, इनके पास क्या होती है? ब्रॉड, बड़ी बड़ी फ्लैट बीक्स होती है एकदम, हम देखते हैं ना ऐसे लंबी लंबी एकदम फ्लैट होती है, क्यों? और उसके साथ क्या होता है? टाइनी होल्स होते हैं साइड में, ताकि वो पानी को फिल्टर कर सके, जो पानी वो पी रही है, ताकि उस फिल्ट्रेशन में वो वर्म्स को बाहर निकाल दें, so that they can filter out the water that they take with the insects and worms. So पानी को वो बाहर निकाल. Next we have is the long pointed slender beak, of hummingbird and sunbird help them to suck the nectar from flowers. अब उसने कहा कि जो लॉन्ग और पॉइंटेड स्लेंडर बीक्स होती हैं जिनकी हमिंग बर्ड्स की, वो क्या करती हैं, और सनबर्ड की, these are the two types of bird, hummingbird and sunbird, help them to suck the nectar from the flowers. जो hummingbirds और sunbirds होती हैं उनके पास लॉन्ग पॉइंटेड स्लेंडर बीक्स होती है, जिससे कि वो नेक्टर को सक कर पाए फ्लावर में से. Next, insect eating birds like woodpeckers have a chisel shaped beak to hunt insects from the tree trunks. अब जो woodpeckers होते हैं, जो wood पे मतलब दे मतलब वो अपनी बीक को वुड पे ऐसे ऐसे करते हैं, टक टक. दे इंसेक्ट, और वो क्या खाते हैं? दे ईट इंसेक्ट. सो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स जो होती है, जैसे कि वो वुडपेकर, दे हैव अ चिजल शेप्ड बीक, चिजल की शेप में इनकी बीक होती है, टू हंट द इंसेक्ट्स फ्रॉम द ट्री टंग्स. ट्री की जो ट्रंक होती है, जो ट्री का आपका ये वाला हिस्सा होता है बेटा, दिस इज अ ट्री, तो ट्री का जो ये वाला हिस्सा है, जो ट्री की ट्रंक होती है, वो इस पे अपनी बीक को पिक नॉक नॉक करती है, सो दैट दे कैन हंट द इंसेक्ट्स फ्रॉम दी ट्री टंग. ट्री की टंग पे जितने भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे इंसेक्ट्स को यहाँ से वो खा सके अपनी बीक से, सो दैट इज व्हाई दे हैव अ चिजल शेप बीक. ठीक. नाउ दीज आर सम पिक्चर्स, हम देख सकते हैं. ये hen है, दे हैव अ डिफरेंट शेप ऑफ अ बीक. दिस इज एन ईगल दैट हैज अ डिफरेंट शेप ऑफ बीक, हम देख सकते हैं कितनी पॉइंटेड है. डक है, फ्लैट एकदम ब्रॉड है. ये भी अलग अलग तरीके की बर्ड्स होते हैं जिनके हम देख सकते हैं, दे हैव अ डिफरेंट शेप ऑफ बीक डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे ईट. नेस्ट. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड लुक आफ्टर देयर यंग. बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाती हैं? दैट वो उसमें अंडे दे सकें और उनका अपने बच्चों का ध्यान रख सकें. एग्स हैच एंड द यंग वंस कम आउट. एग्स क्या हो जाते हैं? जब पूरे हैच हो जाते हैं और उनमें से यंग वंस यानी कि बर्ड के बेबीज बाहर आ जाते हैं. बर्ड्स यूज ड्राई लीव्स, ट्विग्स, वूल क्लॉथ, स्टोन्स एक्सेट्रा टू बिल्ड देयर नेस्ट. बर्ड्स क्या क्या यूज करती हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए? ड्राई लीव, सूखी पत्तियों का, ट्विग होते हैं छोटे छोटे लकड़ियां, वूल यानी कि ऊन, क्लॉथ और स्टोन्स का इस्तेमाल करके वो अपने नेस्ट को बना लेती है. नाउ नेक्स्ट इज टेलर बर्ड्स stitches leaves with spider web, silk or plant fibers to make a nest and it is lined with grass to make it soft and comfortable. जो टेलर बर्ड्स होती हैं वो स्टिच करती हैं लीव्स को स्पाइडर के वेब के साथ. जो आपकी लीव्स हैं उनको वो स्पाइडर का वेब होता है ना, वेब सिल्क होता है या फिर प्लांट फाइबर्स जो ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, वो लीव को उनके साथ स्टिच कर लेती है. इट इज लाइंड विद ग्रास टू मेक इट सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, और वो उसके ऊपर क्या कर लेती है? ग्रास थोड़ा सा बिछा लेती है ताकि वो बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल बन जाए. Second is a woodpecker makes holes in the tree trunk with its beak to build a nest. अभी मैंने आपको समझाया था, woodpecker ट्री की ट्रंक में नॉक नॉक करके छोटा सा होल क्रिएट कर लेती है और वो उसी के अंदर रहती है और वही उसका नेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट, ईगल बिल्ड्स अ रग्ड नेस्ट हाई ऑन द ट्री टॉप. ईगल अपना घर कहाँ बनाती है? रग्ड, रफ सा, बहुत ही ऐसे सुंदर नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल नहीं, एकदम रग्ड होता है वो, बहुत ही रफ होता है. कहाँ पे? ट्री के एकदम टॉप पे बनाती है. वाई ऑन द टॉप? बिकॉज अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ईगल होती है वो स्काई में हाई, दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, तो आसमान में बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें लोग लेते हैं और ऊंचा उड़ते हैं, तो दैट इज वाई उनका जो घर है वो भी कहाँ है? एकदम ट्री की टॉप पे. A penguin piles up stones together on the shores to build its nest. Build its nest. Penguin क्या करते हैं? पिक्चर में भी देख सकते हैं,
पत्थरों को एक साथ एक जगह पे पाइल कर लेता है, पत्थर का एकदम पहाड़ सा बना लेते हैं, और वो उन शोर पे, या शोर मतलब समुद्र के किनारे पे, और वहीं पे वो अपना नेस्ट बना लेते हैं। इन द पिक्चर वी कैन सी टेलर बर्ड क्या करती है, हम देख सकते हैं प्लांट में ये फाइबर दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का, इसको और लीफ को स्टिच कर लेती है अपनी बीक की मदद से, और ये एक तरीके का ऐसे फ्लैट सरफेस बन जाता है, और उसको वो ग्रास लगाते इसे बहुत ही कंफर्टेबल सा नेस्ट बना लेती है। वुड पेकर हम देख सकते हैं अपनी बीक से इसे होल्ड कर रखा है उसने ट्री में, और वो यहीं पे उसके यंग वंस है। ईगल हम देख सकते हैं बहुत ही रफ सा नेस्ट है, कोई बहुत ही सॉफ्टनेस कुछ नहीं है इसमें, और ट्री के टॉप पे बनाती है। और हम देख सकते हैं पेंगुइन ने समुद्र के किनारे पत्थरों को इकट्ठा कर रखा है, और उसी पे उसने अपना नेस्ट बना रखा है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट दैट आर बीइंग मेड बाय द बर्ड्स। A point to remember. The nest of hummingbirds are the smallest, like tiny cups, whereas the dusky scrapful bird builds huge nests that measure about 36 feet in diameter and are 16 feet tall. जो हमिंग बर्ड्स होती हैं उनका नेस्ट कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो छोटे छोटे कप हो, टाइनी कप, वेयर एज जो डस्की स्क्रबफुल बिल्ड्स, ये भी एक तरीके की बर्ड होती है, they build huge nest that measures about 36 feet in diameter and they're 16 feet tall. It's also a type of bird, dusky scrub fowl. ये अपना नेस्ट बहुत बड़ा बनाती है, जिनका साइज क्या होता है, 36 फीट डायमीटर में होता है और 16 फीट टॉल होता है। यू नीड टू रिमेम्बर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज फूड फॉर बर्ड्स। Birds spend a lot of time looking for food. Most birds eat insects, and birds like hummingbirds are plant eaters. Other birds like owls and eagles are meat eaters. जो birds होती है ना बेटा, वो बहुत टाइम तक आसमान में या फिर कहीं पे भी फ्लाई करते हैं, सो दैट दे कैन फाइंड आउट देयर फूड। बहुत सारी बर्ड्स तो इंसेक्ट्स ही खा लेती है। बर्ड्स जैसे कि हमिंग बर्ड जो होती है वो क्या खाती है, प्लांट ईटर्स होते हैं, यानी कि दे ओनली ईट द लीव्स एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दे डू नॉट ईट एनी काइंड ऑफ फ्लेश। बर्ड्स लाइक आउल्स एंड ईगल्स जो होते हैं वो मीट ईटर्स होते हैं। मीट ईटर्स मतलब फ्लेश खाते हैं एनिमल्स की या किसी की भी, दे डोंट ईट प्लांट। Now next is sound made by the birds. Just like humans, birds also need to communicate with each other. क्योंकि वो भी living things हैं हमारी तरीके से. They breathe, they eat food, they have next generations. They perform every way the way human beings perform, and because we also communicate, so just like human beings, birds also need to communicate with each other. The sound made by the bird is called a bird call or a song. जो साउंड बर्ड निकालती है उसे हम कहते हैं बर्ड कॉल या फिर सॉन्ग। अ कॉल इज अ सिंगल साउंड लाइक अ स्क्वीक। कॉल क्या होती है, एक सिंगल, एक इकलौती आवाज जो निकलती है जिसे हम स्वीक, जो स्वीक की तरह लगती है। एंड अ सीरीज ऑफ नोट्स फॉलोइंग अ पैटर्न इज कॉल्ड अ सॉन्ग। अगर बर्ड एक बार आवाज निकालती है तो वो स्वीक हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बर्ड्स बार बार बर्ड्स एक साथ लंबी आवाज निकाल रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो एक सॉन्ग की तरह लग जाती है। तो एक सिंगल कॉल अगर है तो वो स्वीक की तरह लगती है, बट अगर बर्ड आपस में, हम कहते हैं ना चिड़िया चहचाती चली जा रही है, वो एक साथ अगर चहचा रही है, हिंदी में अगर हम बात करें तो वो एक सॉन्ग बन जाता है, बट अगर वो एक ही बार आवाज निकाले तो वो स्वीक की तरह लगता है। एंड दीज साउंड्स कैन बी टू इम्प्रेस और अट्रैक्ट देयर पार्टनर्स और एज अ वार्निंग सिग्नल अबाउट अ डेंजर। और ये जो साउंड वो प्रोड्यूस कर रही है, हो सकता है दे आर they are trying to impress or attract their partners, or it may be a warning signal about a danger, या फिर वो हमें ये अलर्ट करना चाहती हैं, या अपने वर्ड, अपने जो साइड में पार्टनर्स होते हैं उनको अलर्ट करना चाहती हैं that there is a danger, so please be aware. Nightingales and cuckoo birds are sweet singing birds. नाइटिंगेल्स और कुकू बर्ड्स क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा सुरीली होती है, स्वीट सिंगिंग, बहुत ही मधुर आवाज इनकी होती है। पैरट्स इमिटेट ह्यूमन साउंड्स। पैरट्स जो होते हैं वो ह्यूमन साउंड्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कभी देखा हो या सुना हो, तो अगर हम अपने घर में पैरट्स, दे बी we keep parrots as a pet animal, at a pet bird you can say, at our home, तो वो हमारी साउंड को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इफ वी ट्राई टू मेक देम लर्न आवर ओन साउंड, आवर ओन वॉइस, तो वो कर लेते हैं। कॉइंग ऑफ क्रोज इज एन अनप्लेजेंट साउंड। जो कौवा होता है उसकी काव काव जो होती है वो किसी को पसंद नहीं होती है, सो इट इज एन अनप्लेजेंट, यानी कि हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है ये यहाँ पे क्यों बोल रहा है, प्लीज इसे हम वहां से हटा देते हैं, बिकॉज वी डू नॉट लाइक दैट साउंड ऑफ दिस कॉइंग। कॉइंग इज काव काव, तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, सो इट इज वेरी अनप्लेजेंट। केयरिंग फॉर द बर्ड्स।
हैव यू सीन पीपल फीडिंग मिलेट्स बाजरा एंड जवार टू पिजन्स एंड अदर बर्ड्स? क्या आपने कभी देखा है कि हम चिड़िया को दाना डालते हैं, जैसे कि बाजरा और जवार पिजन्स को डाल दिया, अदर बर्ड्स को? इट इज आवर कल्चर टू फीड बर्ड्स एंड एनिमल्स. यस, वी हैव सीन इट इन आवर सराउंडिंग. व्हाई? Because it is a culture to feed the birds and to feed the animals around us. We can arrange water and grains on our rooftop for the birds to eat and drink. हमें हमारी छत पे पानी का एक छोटा सा बाउल रख देना चाहिए और एक बाउल में थोड़े से दाने या ग्रेन रख देने चाहिए so that the birds can eat and drink. You can put earthen pots of water for the birds to drink bath and play with. Earthen pots मतलब मटके रख सकते हैं मिट्टी के हम birds के लिए, so that वो उसमें से पानी पी सकें, बात कर सकें और उस पानी में खेल सकें. And if there is some suitable place in your house, you can make a bird house. और अगर हमारे घर में पेड़ है या ऐसी कोई जगह है तो हमें छोटा सा एक बर्ड हाउस वहां बना देना चाहिए so that the birds can stay over there. अगर हम पिक्चर्स में देखें तो ये बर्ड्स अपना खाना खा रहे हैं. नाउ दीज आर बर्ड फीडिंग, ये हम फीड कर रहे हैं. आप देख सकते हो बॉटल में किसी ने कर रखा है. अगेन दिस इज अ पॉट और यू कैन से अ बाउल of water that is being kept by the human beings, and this is a bird house made by the human beings where the birds can live safely. Migration. Some birds cover long distances to reach places with favorable climatic conditions to lay egg and in the search of food. अब कुछ जो birds होती है ना बेटा, वो बहुत लंबे लंबे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ने के बाद उस जगह पे चले जाते हैं जहां पे उन्हें लगता है दैट इट इज द करेक्ट कंडीशन जहां पे वो अपने एग्स को दे सकते हैं. करेक्ट मीन्स फेवरेबल कंडीशन है उनके क्लाइमेटिक कंडीशन. हो सकता है कुछ बर्ड्स को बहुत ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ये हो सकता है दैट कुछ बर्ड्स को बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती. सो व्हाट डू दे फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच द प्लेस जो कि उनके लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस जहाँ पे उन्हें मिले और वो अपने एग्स को वहां पे ले कर सके और वो अपने फूड को वहां ढूंढ सके. Once the conditions are favorable there, they return to their native place. अगर बर्ड एक सपोज एक बर्ड ये कहीं से एक दिल्ली की है और एक बर्ड नोएडा की है, बट ये तो सेम सेम डिस्टेंस हो गया. कोई बर्ड सपोज उसे कहीं जगह पे बहुत ठंड पड़ती है और कहीं पर ठंड नहीं पड़ती, तो बर्ड क्या करती है ठंड के मौसम में अपनी नेटिव प्लेस को छोड़ के वहां चली जाएगी जहाँ ठंड नहीं होती, so दैट वो उस कंडीशन में जाके अपने एग्स ले कर सके और अपना फूड कंज्यूम कर सके. वंस द विंटर इज ओवर, व्हाट विल द बर्ड डू? बर्ड वहां से वापस आ जाती है अपनी नेटिव प्लेस. नेटिव मीन्स जहाँ से वो गई होती, जहाँ पे वो पहले से रहती थी. तो वंस द वेदर कंडीशंस आर फेवरेबल, वो अपनी नेटिव प्लेस पे वापस आ जाती हैं. एंड दिस सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम कोल्डर प्लेसेस टू वार्मर प्लेसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. और बर्ड्स के इस मूवमेंट को कि वो ठंडी जगह से गर्म जगह पे जा रही हैं फ्रॉम कोल्डर प्लेसेस टू वार्मर प्लेसेस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं. एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. और जो बर्ड्स ट्रेवल करती हैं कोल्डर से हॉट प्लेसेस पे उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स फाइंड सेफ शेल्टर इन वेरियस बर्ड सैंचुरीज. जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है वो सेफ शेल्टर यानी कि ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे वो खुद को सेफ महसूस कर सके. बहुत वेरियस बर्ड सेंचुरीज होती हैं जहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि उन्हें बर्ड सेंचुरी में एक सेफ शेल्टर मिल जाए. These are protected areas where the hunting of bird is strictly prohibited. What happens in today's generation is, अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग्स हैव स्टार्टेड हंटेड द बर्ड्स. हंट का मतलब होता है मार देना. हम जानवरों को मार देते हैं, हम पेड़ों को काटते हैं, बर्ड्स को भी मार देते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज समवेयर और द अदर आज के टाइम पे कहीं ना कहीं हमारे जो एनिमल्स होते हैं दे आर नॉट सेफ इन द सराउंडिंग. तो बर्ड्स क्या कोशिश करती हैं? वो बर्ड सेंचुरीज में जाने की कोशिश करती हैं. क्यों? क्योंकि बर्ड सेंचुरी के अंदर हंटिंग यानी कि बर्ड्स को मारना इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड का मतलब होता है बेटा मना है, एकदम बंद है, वहां पे आप बर्ड को मार नहीं सकते हो. सो दे ट्राई टू फाइंड अ सेफ शेल्टर इन द वेरियस बर्ड सेंचुरीज बिकॉज दीज एरियाज आर प्रोटेक्टेड वेयर हंटिंग ऑफ बर्ड्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. यहाँ पे बर्ड्स की हंटिंग एकदम मना होती है. आप देख सकते हो पिक्चर में आर्कटिक टर्न है, कॉमन टीला, अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड इन दी सराउंडिंग. Points to remember. Birds are the only featured animals that can fly. Birds इकलौते ऐसे featured animals हैं जो हवा में उड़ सकते हैं. Flight feathers, down feathers, and body feathers are the type of feathers a bird has. We have studied that the bird has three types of feathers: flight feathers, down feathers, and body feathers. Some birds fly long distances while some fly short ones. कुछ birds लंबे long distance travel करती हैं, कुछ सिर्फ छोटे distance को travel करती हैं. Birds build nests to lay eggs and look after their young ones. Bird nest क्यों बना दिया? ताकि वो उसमें अपने अंडे दे सके और अपने young ones का ख्याल रख सके.
बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। बर्ड्स के पास अलग अलग तरीके की चोंच होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर ईटिंग हैबिट्स। द सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड फ्रॉम कोल्डर प्लेस टू वार्मर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। बर्ड्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठंडी जगह से दूसरी गर्म जगह पे जाने के प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। एंड वी कैन अरेंज वाटर एंड रेन्स ऑन आवर रूफ टॉप्स फॉर द बर्ड टू ईट एंड ड्रिंक। हम अपनी छत पे पानी का एक छोटा सा बाउल और एक बाउल में ग्रेन्स पुट करके, बाजरा या ज्वार पुट करके रख सकते हैं फॉर द बर्ड्स टू ईट एंड ड्रिंक। I hope you have understood the chapter, and now it's the time to do some exercise. So this bird can fly for long distance. Peacock, hen या फिर wait, peacock, hen या arctic tern। कौन सी ऐसी bird होती है बेटा जो long distance travel कर सकती है? It's the arctic tern. It's a flightless bird. Eagle, vulture या ostrich। Flightless मतलब जो उड़ नहीं सकती, और कौन सी ऐसी bird है जो उड़ नहीं सकती है? Ostrich, क्योंकि eagle और vulture तो they fly high in the sky. Seasonal movement of birds from colder to warmer place is adaptation, migration या protection। बर्ड्स का कोल्डर प्लेस से वार्म प्लेस तक जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। बर्ड्स आर द ओनली फीचर्ड एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, ईट या वॉक। बर्ड्स इकलौते ऐसे फीचर्ड एनिमल्स हैं व्हिच कैन फ्लाई। डाउन फेदर्स कीप द बर्ड्स बॉडी लाइट, वार्म या फिर कूल। जो सबसे अंदर के फेदर्स होते हैं, डाउन फेदर्स, वो बर्ड की बॉडी को कैसा रखते हैं? बहुत ज्यादा वार्म। These are some correct fill in the blank. Sorry. The outer covering of the bird's feather is called, bird की जो outer covering होती है feathers के, मुझे क्या कहते हैं? Plumage. Birds will dash to lay eggs and look after the young ones. Birds eggs lay करने के लिए, अपने young ones का ख्याल रखने के लिए क्या बनाती हैं? Nest बनाती हैं। So birds build nest. Birds have dash bones to keep their body light. Birds के पास कैसे bones होते हैं ताकि उनकी बॉडी एकदम लाइट रहती है, खोखली यानी कि हॉलो होती है, so that उनकी बॉडी कैसी रहे? एकदम लाइट रहे। Birds have dash body to cut through the air. Birds के पास कैसी बॉडी होती है बेटा? एयर को कट करने के लिए स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। Birds have streamlined बॉडी। डैश फेदर्स आर लॉन्ग एंड स्टिफ। कौन से फेदर्स होते हैं जो एकदम लंबे लंबे और एकदम कड़क होते हैं? राइट फेदर्स, क्योंकि वो एकदम बाहर होते हैं विंग्स के ऊपर। नेम टू बर्ड्स दैट कैन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक चलती हैं, कौन सी होती हैं? हेन्स होती हैं, पीकॉक होती है। फ्लाई हाई इन द स्काई, ईगल, बेस्ट एग्जाम्पल। एंड वेट, आई जस्ट राइट इट अगेन, hen and peacock। हाई इन द स्काई में हमने बोला ईगल एंड vulture। फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन सी होती है बेटा? ऑस्ट्रिच, which cannot fly in the sky. We have kiwi. You can write any other name because we have studied so many names in the chapter. Fly very long distances. Long distance तक कौन सी चलती हैं? Long distance तक आर्कटिक टर्न होती है और गीज होती है। Now, names of the birds are given and the types of beak is given. Now you have to remember that you have to mark and you have to match the following, that which kind of bird has which kind of beak. So we have to match the following. So let's start. Kite, pigeon, duck, sunbird and woodpecker. हमें 5 तरीके की birds दी हुई हैं और सामने अलग अलग तरीके की beak दी हुई है। We just have to match the following. सबसे पहले हमें जो समझ आता है, हम वो वाली birds के बारे में करेंगे। Easily we know that woodpecker सबसे अलग होता है। So woodpecker की जो bird की जो beak होती है वो chisel shape, clear। पिजन के पास कैसी होती है? पिजन के पास एकदम शॉर्ट होती है और पॉइंटेड होती है, क्लियर। देन अगर हम सनबर्ड की बात करेंगे तो सनबर्ड के पास कैसी होती है, या फिर चलो डक की बात करते हैं। डक के पास कैसी होती है? ब्रॉड और फ्लैट होती है। सनबर्ड के पास कैसी होती है बेटा? लॉन्ग और स्लेंडर शेप। और काइट के पास शार्प और हुक्ड बीक होती है। ठीक, हमें जो वर्ड पहले समझ में आएगी या फिर जो पहले समझ में आया, जो आपको पहले समझ में आया, यू कैन डू दैट। Now these are some answers to the following questions that you people will be doing in your
homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much. And now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.